Hello all my lovely soul, welcome to my channel. I hope you all are doing well. For past few days I was very busy, so I didn't get the time to upload any video. But finally I am back with another pick a card reading. Before starting this video, I would like to inform you that from now on I will do personal reading. So if you are interested in it, you can contact me through my email ID which I have mentioned in the description box of this video. Now moving forward towards our topic. Today we are going to see all about your future spouse, jealousy, possessiveness and overprotective nature. It's a requested video plus also a general reading. So take only those messages which resonates with you and leave the rest. Like as always, we have two groups, group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any group which you have drawn into, and I will meet you at group number 1. Hello group number 1. Today we are going to see all about your future spouse, jealousy, possessiveness and overprotective nature. So we have 6 of Wands, the Star, Judgment, 9 of Wands, 2 of Wands and lastly the Fool card. With 6 of Wands, you are a successful person. Your success and accomplishment inspire others a lot. People admire you for your victory and recognition in society. You are a beauty with a brain, and your future spouse will see how much the opposite gender is attracted to you, even knowing you are married, and try to flirt with you. This fact will make your person very jealous. For 1 or 2% of my viewers, there is a possibility that you are a fire sign and your other half will be a water sign. We know that fire and water can't be together at the same time. Due to this striking contrast of zodiac signs, both of your energies will be mismatched. As I mentioned earlier about your achievement, your future spouse may feel jealous about your success, and it could bring jealousy into your relationship. Maybe your future spouse could have Aquarius as their zodiac sign, or in their birth chart, Aquarius in the 8th house. If we talk about your future spouse possessiveness, your future spouse is a spiritually awakened person. He or she is aligned with their higher self and transformative in nature. They will urge you to reach your full potential. Your future spouse will be a very clear-minded person. Someone with this kind of personality is never going to be possessive. But for a small section of people, in the past, your future spouse endured a lot in relationships. Due to his or her kind personality, people often try to take advantage. So your other half has become more guarded on an emotional level. Right now, they are feeling like they are not lucky enough to receive true love. But in the future, when you two meet and your person knows that you are the one for them, he or she will become more possessive of you. Your person is good at reading others' hidden intentions. So, if someone tries to interfere in your relationship or married life, your future spouse will go into a defensive mode. In this type of situation, your life partner will show their possessiveness towards you. At their heart, they accept the fact that they can't lose you. So their nature instinct will force them to show their possessiveness, to show other people that you are already taken. With you, your future spouse mindset will be like, you are mine and no one can mess with me and take away what is mine. You will be such kind of person. When it comes to the overprotective nature, your future spouse is very courageous and action oriented. For you, it may seem childlike, but sometimes your husband or wife will want to create a fort and keep you there so that no one can harm you. In other words, he or she wants to protect you from all the evils of the outside world. Your life partner wishes to give you the world and wants to fulfill all your dreams. He or she will be your number 1 protector, always guiding and protecting you so that no harm comes to you. Your future spouse will believe that the cosmos has sent you as a blessing into their life, and he or she will protect you with everything they have. If someone dares to think about harming you or threatening your security, your future spouse will literally burn them alive. For them, you will be their most precious treasure, and they will always guide and cherish it. Thoughts of you itself heightens your person's protective nature towards you. In order to protect you, your future spouse will go to any extent. Your person will fall head over heels in love with you
His or her presence will make you feel happy, joyful, relaxed, and carefree. You will be the light of their darkness. So they will pledge themselves to keep you safe. Your future spouse will not be afraid to take any risk to ensure your protection. For some of you, eagle could be your future spouse spirit animal. It will give them all the qualities of an excellent warrior who is always ready to fight and defend for his king or queen. There is a possibility that your future spouse may work in Air Force or Navy. Now we are going to see some zodiac signs. This could be your or your future spouse zodiac sign. So what we have is Gemini, Sagittarius and Libra. This could be your zodiac sign or maybe your future spouse zodiac sign. Now we are going to see some planets, and degree wise those planets could be in a high position or low position of your birth chart or maybe your future spouse birth chart. So we have is Moon, Mars and Jupiter. So degree wise they could be in a high or low position of your birth chart or maybe your future spouse birth chart. Now we are going to see some charms. So the charms we have is the fishbone, the key, and this is a heart shaped. So with this key, your future spouse sometimes may feel like he or she will lock you with this key in a room and then guide you from outside. But with this fishbone, your future spouse will cut all the evils from your life or from your relationship. And lastly, with heart shape, your future spouse will love you very much. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Hello group number 2. Today we are going to see all about your future spouse jealousy, possessiveness and overprotective nature. So we have 2 of cups, 3 of cups, Queen of Wands, Death card, Page of Wands and lastly the Lovers. For some of my viewers, there is a possibility that before marriage you will know your life partner. You may have a love relationship with them, but in this connection, cheating will lead to a breakup. After your breakup, you will decide to move on and a new person will enter into your life. At that time, your ex, who is also going to be your future spouse, will be jealous to see you happy with another person. And for a small section of my viewers, there may be an unwanted third-party situation in your relationship which will cause you a lot of pain. Or maybe your person will take you for granted, and later when he or she will lose you and realize your true value, they will feel very jealous. When it comes to their protective side, your future spouse could be the most possessive person you will ever meet. His or her possessive behavior knows no boundary. Your life partner will demand all your love, time and attention. There are people who hate to share. He or she will be a very controlling person in this relationship. Though sometimes it may irritate you, but your future husband or wife loves to be in control of everything in their day-to-day lives. For them, you will be their obsession. Your partner will be afraid to lose you. This fear will make them more controlling. In one sentence, you will have an intense connection with your person. You will see that your future spouse doesn't like it when you talk or laugh with your opposite gender friends. So if your best friend is of your opposite gender, then it may affect your relationship with them. Now we will talk about your future spouse overprotective nature. Your spouse will be in a ready mood to protect you. If he or she feels any negative thing or doubt about someone's intention for you, then your person will not rest until and unless he or she solves the issue. Your future hubby or wifey will be very protective of you. Their desire to protect you will make them
to take bold action. He or she will be very passionate towards you, and it will be a motivating factor for them. If you have any haters or enemies, then your life partner will be bad news for them. People who hate you or want to give you problems have no idea to what extent your future spouse can go in order to protect you. Your spouse will see you as their soulmate. He or she can't imagine their life without you. You make them feel complete, and they will not allow anyone to take away their happiness, that's you, from their life. Irrespective of gender, you trigger your future spouse's protective nature every time they see you. No matter how much capable you are to defend yourself, but your love interest will be very concerned about your well-being. If your future spouse ever feels like he or she may lose you, then they will go insane. For your future spouse, you will be his or her destiny, and in your life, your place will be above all. When it comes to you, all other things will fade away from your future spouse's mind. You will be like their breath, so without you, their existence is impossible. Now we are going to see some zodiac signs for you. This could be your zodiac sign or maybe your future spouse zodiac sign. So what we have is Taurus, Virgo and Aries. This could be your zodiac sign or maybe your future spouse zodiac sign. Now we are going to see some planets. Maybe degree-wise, this planet could be in a higher or lower position in your birth chart or maybe your future spouse birth chart. So we have is Mercury, Ketu and Venus. Degree wise, these planets could be in a low position or maybe high position in your birth chart. Now we are going to see some charms. So the charms we have for you is one is butterfly, then dolphin, and next is horseshoe. So with this butterfly, your relationship will be a transformative for both of you. After your marriage, your life will go through a lots of transformation, and same goes for your future spouse. And with this dolphin image, if we talk about spirituality, then dolphin's spiritual meaning is joy, love, life. If we talk about their nature, dolphins are very protective towards their mate. So with this dolphin, your future spouse is going to be very protective towards you. With this horseshoe, your future spouse will protect you from all the evils. He or she is going to be extremely protective towards you. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. हेलो माय लवली सोल, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। पिछले कुछ दिन मैं बहुत बिजी थी, इसलिए एक भी वीडियो नहीं बना पाई। तो फाइनली आज मैं एक नया पिकर कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, और यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी से मैंने पर्सनल रीडिंग देना शुरू किया है। तो अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने ईमेल आईडी दिया है, आप मुझे उस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो हमारा आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके कितने पॉजिटिव, प्रोटेक्टिवनेस और जेलस फील करते हैं। तो हमेशा की तरह हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जेलसी, पॉजिटिवनेस एंड ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के बारे में। सो हमारे पास है 6 ऑफ वंस, द स्टार, जजमेंट कार्ड, 9 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस एंड लास्टली द फुल।
सिक्स ऑफ वंस के साथ आप अपनी लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, और मे बी अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हो लेकिन इन फ्यूचर आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। आपकी सक्सेस और आपकी अकॉम्प्लिशमेंट दूसरे को बहुत इंस्पायर करेंगे। लोग आपको आपकी विक्ट्री और रिकॉग्निशन की वजह से सोसाइटी में बहुत चाहते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके जेंडर, आप एक ऐसे इंसान हो जो देखने में भी बहुत खूबसूरत हो, भले ही आपका जेंडर कोई भी क्यों ना हो, और साथ ही साथ आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी हो। और आपके फीचर्स पास इस बात को देख सकते हैं कि आपके अपोजिट जेंडर आपकी तरफ कितने अट्रैक्ट फील करते हैं। भले ही उन्हें पता हो कि आप शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ अपोजिट जेंडर आपके साथ फ्लर्ट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और इस बात की वजह से आपके फीचर्स पास बहुत जेलस फील करते हैं। और इस ग्रुप में 1 और 2% में व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक फायर साइन हो और आपके जो फ्यूचर्स पास होंगे वो वाटर साइन होंगे। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि फायर और वाटर एक साथ एक ही टाइम पे नहीं रह सकते। और आप दोनों की जो ये कॉन्ट्रास्ट है ना, जोडाइक साइन की तरफ से जो कॉन्ट्रास्ट है आप दोनों के बीच, ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो थोड़ी मिसमैच हो सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप एक बहुत अचीवमेंट आपके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए, और या फिर अपने लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपकी सक्सेस को देख कर आपके फ्यूचर्स पास थोड़ी जेलस फील करें। और इस जेलसी जो उनके दिल में जो जेलसी होगी ना आपकी सक्सेस को देख के, ये जेलसी आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। आप दोनों की रिलेशनशिप को थोड़ा खटास में डाल सकता है ये जेलसी फीलिंग। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर्स पास की जो डाइक साइन है वो एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर उनके बर्थ चार्ट में एक्वेरियस 8 नंबर हाउस में हो सकते हैं। अगर हाँ आपके फ्यूचर्स पास की पॉजिटिवनेस के बारे में बोले तो आपके फ्यूचर्स पास एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है। वो अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत अलाइंड है और उनकी नेचर ट्रांसफॉर्मेटिव है। और आपके फ्यूचर्स पास एक ऐसे इंसान है जो आपको आज करेंगे ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल में आ सको, और उनका जो माइंडसेट है ना वो बहुत क्लियर है। सो समवन दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वो इंसान कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल सेक्शन व्यूअर्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर्स पास के पास्ट में उन्होंने रिलेशनशिप में बहुत सारे पेन सहे हैं, दुख सहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप उनके फैमिली के साथ ही क्यों ना हो, या फिर दोस्तों के साथ हो, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में उन्हें बहुत दुख मिला है। आपके फ्यूचर्स पास बहुत काइंड हार्टेड है, और इस उनकी काइंड नेचर की वजह से लोगों ने उनसे बहुत सारे एडवांटेज लेने की कोशिश की है। और इमोशनल लेवल पे आपके फ्यूचर्स पास खुद के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और कॉन्शियस बन गए हैं, ताकि कोई दूसरे इंसान उनके फ़ायदे ना उठा सके। जब फ्यूचर में आप दोनों मिलोगे और आपके फ्यूचर्स पास को ये रियलाइज़ होगा कि आप ही उनके लिए हो, तो आपके फ्यूचर्स पास आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरे के हिडन इंटेंशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी हिडन इंटेंशंस क्या है, वो आपके फ्यूचर्स पास को बहुत अच्छे से पता है। सो अगर कोई दूसरा आदमी या फिर कोई बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, या फिर आपके मैरिड लाइफ में अगर किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश किया, तो आपके फ्यूचर्स पास डायरेक्ट डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे। सो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर्स पास आपको उनका पॉजिटिवनेस दिखाएंगे। आपके पर्सन ने अपने दिल से ये बात एक्सेप्ट की है कि वो आपके बिना इस लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। सो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट उन्हें ये फोर्स करेंगी कि दूसरे के सामने वो ये दिखाएं कि आप उनके हो, या फिर आपने एक दूसरे के साथ आप दोनों रिलेशनशिप में हो, या फिर आप दोनों की शादी हो चुकी है। तो बाहर जो लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में कोई करवाहट डालने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग बाहर जा सकते हैं, या फिर वो लोग आप दोनों की ज़िंदगी से बाहर जाएं। वो इसलिए आपके फीचर्स पास अपना पॉजिटिवनेस दूसरों को भी दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। आपके साथ उनका माइंडसेट ऐसा होगा, वो ये सोचेंगे कि आप उनके हो, और कोई भी उनके साथ उनके इमोशंस के साथ कोई भी मैच नहीं कर सकते। और जो चीज़ या फिर जो लोग उनके हैं, वो कोई भी दूसरे इंसान उनकी लाइफ में आकर इंटरफेयर नहीं कर सकती, उनकी खुशियों को कोई छीन नहीं सकता। और जब यहाँ तक उनकी प्रोटेक्टिव नेचर की बात है, तो आपके फीचर्स पास बहुत करेजियस है और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। भले ही आपके लिए ये चाइल्ड लाइक नेचर लगे, लेकिन समटाइम आपके फीचर्स पास ये सोचेंगे कि उनकी कैपेसिटी में हो, तो वो आपके लिए एक फोर्ट क्रिएट करेंगे ताकि वो आपको उसके अंदर रख सके और आपको बाहर की सारी इविल से आपको प्रोटेक्ट कर सके। आपके लाइफ पार्टनर आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, और आपके जो ड्रीम्स है उन सभी ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके नंबर 1 प्रोटेक्टर होंगे,
हमेशा आपको गाइड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि कोई बाहरी तकलीफ़ या फिर कोई बाहरी हार्म आपकी तरफ नहीं आ सकती। आपके पर्सन ये बिलीव करेंगे कि इस यूनिवर्स ने आपको उनकी लाइफ में ऐसे ब्लेसिंग भेजा है और वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर किसी ने हिम्मत की कि आपके बारे में कोई गलत सोचे या फिर अगर किसी ने आपको थ्रेटन करने की कोशिश की, तो आपके फ्यूचर्स पास लिटरली उस पर्सन को बर्न अलाइव करेंगे। आपके पर्सन के लिए आप उनके लाइफ के मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर हो और वो हमेशा उस ट्रेजर को यानी कि आपको गाइड करेंगे और चेरिश करेंगे। जब भी आपकी थॉट उनके माइंड में आएगा ना, तो वही थॉट्स ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रोटेक्टिव इन नेचर है उसको हाइटन करेंगे। और इस ग्रुप से मुझे ये लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपके फ्यूचर्स पास किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके पर्सन आपको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, आपको पागलर की तरह चाहेंगे और उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, जॉय, रिलैक्स्ड और केयरफ्री एटीट्यूड आपकी लाइफ में लाएंगी। और उनके लिए ना आप उनकी लाइट हो, आप उनकी सनशाइन हो और उन्होंने ये खुद से वादा किया है कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े ना, तो आपके फ्यूचर्स पास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। और यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि ईगल आपके फ्यूचर्स पास की स्पिरिट एनिमल हो सकती है। जो हमारे स्पिरिट एनिमल होती है ना, उनकी कुछ क्वालिटियाँ हमारे अंदर भी होती है। ठीक वैसे ही जो ईगल्स की क्वालिटी है वो आपके फ्यूचर्स पास के अंदर भी आएंगी। जिलेंट वॉरियर अपने किंग और क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं, ठीक वैसे ही आपके फ्यूचर्स पास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर्स पास शायद नेवी या फिर एयरफोर्स में हो सकते हैं ना। हम कुछ जोडाइक साइन देखेंगे। वो जोडाइक साइन कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपके जोडाइक साइन हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर्स पास की जोडाइक साइन हो सकती है। तो हमारे पास है लिब्रा, सजिटेरियस एंड जेमिनाई। सो लिब्रा, सजिटेरियस और जेमिनाई, तो तुला राशि या फिर धनु राशि या मिथुन राशि, इनमें से कोई भी राशि आपकी हो सकती है या फिर आपके फ्यूचर्स पास की जोडाइक साइन या फिर उनकी राशि हो सकती है। अब हम देखेंगे कुछ प्लैनेट्स, जो ये प्लैनेट्स है या फिर जो ये ग्रह है ना, ये आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपकी जन्म कुंडली में डिग्री वाइज उनकी हाई और लो क्वालिटी हो सकती है। सो हमारे पास है जुपिटर, मार्स, जुपिटर, मार्स, मून। तो गुरु ग्रह, चंद्र और मंगल, ये तीनों आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके फ्यूचर्स पास के बर्थ चार्ट में शायद हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री में हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ चांस। तो हमारे पास है ये की ताले की चाबी, ये मछली का कांटा और ये हार्ट शेप वाला डिज़ाइन। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर्स पास की जेलसी, पॉसेसिवनेस एंड ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के बारे में। सो हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंस, डेथ कार्ड, पेज ऑफ वंस एंड लास्टली द लवर्स कार्ड। इस ग्रुप में मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके मैरिज के बिफोर यानी कि आपके मैरिज के पहले ही आप अपने फ्यूचर्स पास को जानोगे। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि आपके फ्यूचर्स पास के साथ शादी से पहले आपके कोई लव रिलेशनशिप भी रह सकती है, लेकिन इस रिलेशनशिप में चीटिंग की वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेकअप तक जा सकता है। और जब आपकी ब्रेकअप होगी और जब अपने लाइफ में आप डिसाइड करोगे मूव ऑन करने के लिए और आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री होगी, उस वक्त आपकी एक्स जो फ्यूचर में जाके आपके फ्यूचर्स पास बन सकते हैं, वो पर्सन आपको उस दूसरे इंसान के साथ देख के बहुत जेलस फील करेंगे। और यहाँ पे स्मॉल सेक्शन में व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत तकलीफ मिल सकती है। और जब आप टेम्पोरली आपके फ्यूचर्स पास से आप दूर आओगे और जब वो आपको
जब वो ये रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने आपको खो दिया है, और आपकी ट्रू वैल्यू को जब उन्हें पता चलेगा या फिर वो महसूस करेंगे कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, उस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत जेलस फील करेंगे। और जहाँ तक उनकी पॉजिटिवनेस की बात आती है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना इस दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान होंगे। अगर हम आम भाषा में बोले तो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए पॉजिटिवनेस की कोई हद नहीं है, वो इतने पॉजिटिव इंसान होंगे। आपके लाइफ पार्टनर आपसे आपका फुल टाइम अटेंशन और लव मांगेंगे, उसका डिमांड करेंगे, ताकि वो उनको अपना फुल टाइम अटेंशन और लव दो। वो एक ऐसे इंसान है ना जो किसी भी चीज़ को लेकर या फिर इंसान को उनका प्यार ही क्यों ना हो, लेकिन वो शेयर करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। दूसरे शब्द में अगर मैं ये कहूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस शेयर करने में बहुत हिचकिचाते हैं, भले ही कभी कभार आपको ये बात इरिटेट करे, लेकिन आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ एक ऐसे इंसान है जो अपने लाइफ के हर चीज़ों पे उन्हें कंट्रोल रहना पसंद है। आपके पर्सन आपको खोने से बहुत डरेंगे, और इस डर की वजह से वो ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के बनते जाएंगे आपके साथ। अगर हम बात करें तो आपका जो कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, एक बहुत इंटेंस कनेक्शन होने वाला है। और मुझे इस ग्रुप के लिए ये लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बात अच्छी नहीं लगती जब आप दूसरे जेंडर के लोगों के साथ या फिर दूसरे जेंडर के फ्रेंड के साथ आप बात करते हो या फिर उनके साथ जब हंसते हो ना, ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आपके ऑपोजिट जेंडर है, तो यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, या फिर ये कहूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। हम अभी उनके ओवर प्रोटेक्टिवनेस नेचर के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक आपको प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा रेडी मोड में रहेंगे। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी इंसान के इंटेंशन पे डाउट है या फिर किसी इंसान से उन्हें नेगेटिव वाइब आती है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक वो उस इशू को सॉल्व नहीं करते, या फिर जो इंसान आपको हार्म कर सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको हार्म कर सकता है, जब तक वो इंसान को आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ से दूर नहीं कर देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे इंसान है, वो आपके लाइफ पार्टनर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो आपके लिए ना बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं, और आप उनका जो डिज़ायर है आपको प्रोटेक्ट करने की, जो उनकी इच्छा है या फिर उनकी जो दिली ख्वाहिश है आपको प्रोटेक्ट करने की, वो ख्वाहिश उनको कोई बोल्ड स्टेप लेने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत पैशनेट फील करेंगे, और एक उनकी पैशन आपके लिए, जो उनका पैशन होगा, वो उनका पैशन एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा उनके लिए। अगर आपकी कोई हेटर्स है या फिर आपकी कोई एनिमी है, तो आपके लाइफ पार्टनर उनके लिए एक बैड न्यूज़ हो सकते हैं। अगर कोई इंसान आपसे हेट करता है या फिर आपको प्रॉब्लम देने के बारे में सोच रहा है, तो उस इंसान को ये पता नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो उस बात को अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। की तरह आपके फ्यूचर स्पाउस आपको उनकी सोलमेट की तरह देखेंगे, और वो आपके बिना अपनी लाइफ कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। अपना उनको हमेशा कंप्लीट महसूस करवाते हो, और वो जो आपके साथ उन्हें जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी वो किसी और के साथ कभी उन्हें मिल ही नहीं सकती। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये कभी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई उनसे उनकी लाइफ की खुशियाँ, यानी कि आपको कोई उनसे छीन के ले जाए, ये कभी आपके फ्यूचर स्पाउस सोच भी नहीं सकते। भले ही आपके जेंडर कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल में हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की जो उनकी नेचर है ना, वो हमेशा उनकी दिल को ट्रिगर करेगा, उनके माइंड को ट्रिगर करेगा। भले ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी वेलबींग को लेके, आपकी प्रोटेक्शन को लेके हमेशा सोचेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खोने से डरते हैं, तो अगर उनके दिल में या फिर उनके दिमाग में कभी गलती से भी ये बात आया कि वो आपको खो सकते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उनका बिहेवियर एकदम इंसेंट जैसा हो जाएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ना आप उनकी डेस्टिनी हो, और उनकी ज़िंदगी में ना जो आपकी जगह है वो बहुत ऊपर है, यानी कि सबसे ऊपर है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप उनकी ब्रेथ हो, यानी कि आप उनकी सांस हो, और आपके बिना वो अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। आपके बिना अपनी लाइफ की इमेजिन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। नाउ हम देखेंगे कुछ ज़ोडिएक साइंस। ये हो सकता है कि या फिर ये साइंस आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। तो हमारे पास है एरिस, विर्गो एंड टॉरस। तो कन्या राशि, मेष राशि और वृषभ राशि, ये शायद इन तीनों राशि आपकी हो सकती है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की राशि हो सकती है, या फिर उनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है।
अब हम देखेंगे कुछ प्लैनेट्स यानी कि कुछ ग्रह। ये ग्रह ऐसा हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके फ्यूचर्स पास के बर्थ चार्ट में डिग्री वाइज ये ग्रह कुछ हाई और लो पोजीशन में हो सकते हैं। तो हमारे पास है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह, केतु और मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह। तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और केतु ग्रह, ये तीनों ग्रह आपके फ्यूचर्स पास के बर्थ चार्ट में या फिर आपके बर्थ चार्ट में शायद उनका पोजीशन हाई और लो ऐसा हो सकता है डिग्री वाइज। और हम अभी कुछ चार्म्स देखेंगे। तो हमारे पास आपके लिए चार्म्स है डॉल्फिन का, डॉल्फिन है, बटरफ्लाई है और ये हॉर्स शू है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।